اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ جناب مرحوم شیخ عبداللہ مامقانی نے جلد سوم میں تنقیح المقال میں لکھتے ہیں کہ زینب وما زینب وما ادرک ما زینب، یعنی زینب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کون زینب؟ اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ حیا عقیلۃ بنی ہاشم وقت حاضت من الصفات الحمیدہ، کہ کون زینب؟ سنو، زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے اور صفات حمیدہ بلند و بالا درجے والی، یعنی کہ جو بلند و بالا درجہ رکھتی ہیں صفات حمیدہ کا۔ یہ میری پاک بی بی کی جس کی آج پیدائش کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ اس دنیا میں تشریف نہ لاتی تو کربلا مکمل نہ ہوتی۔ میری بی بی کا نام زینب کبریٰ ہے، کنیت آپ کی ام الحسن و ام کلثوم ہے، لقب آپ کا عقیلہ بنی ہاشم، عقیلت طالبین، عالمہ غیر معلمہ، نائبت زہرا، فاضلہ، کاملہ، عابدہ، اور اس کے علاوہ آپ کو کفیلۃ السجاد بھی کہتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی والدہ گرامی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، آپ کے نانا سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نانی جناب ملکۃ العرب جناب ختیجۃ الکبریٰ، آپ کے دادا جناب ابو طالب اور آپ کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد۔ میری پاک بی بی پنجتن کے ساتھ ہیں، بے شک 14 معصوم ہیں، اور یہ 14 معصوم عصمت کبریٰ کے مالک ہیں، اور میری بی بی عصمت صغریٰ کے مالک ہیں، اور آپ کا لقب ثانی زہرا بھی ہے۔ جب میری پاک بی بی زینب اس دنیا میں تشریف لائیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس گھر میں بیٹے ہوں تو وہاں ماں کو بیٹی کی بڑی خواہش ہوتی ہے، اور خداوند کریم نے جب جناب پاک سیدہ کی گود میں پاک زینب کو دیا تو بی بی بہت خوش تھیں، اس لیے کہ خداوند کریم نے بیٹی عطا کی تھی۔ اس لیے کہ خداوند کریم نے بیٹی عطا کی تھی، اور آپ کو بیٹی کی محبت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ آپ کا گھر میں بیٹے تو تھے، آپ کی نہ کوئی بہن تھی، اور والدہ کا بھی انتقال جلدی ہو گیا تھا، تو بیٹی کو دیکھ کے آپ بہت خوش تھیں۔ جناب مولا علی آئے، بی بی نے ایک سفید رنگ کے کرتا پہنایا ہوا تھا اور چھوٹا سا مکھنا پہنایا ہوا تھا۔ جناب مشکل کشا نے اپنی لاڈلی کو گود میں لیا، آپ کو بھی بہت تمنا تھی بیٹی کی، اور خداوند کریم نے بیٹی دی،
तो बहुत खुश थे आप। तो जनाब फातिमा तो ज़हरा सैयदतुन्निसाउल आलमीन ने कहा कि अब आप इसका नाम रखें ना। तो आपने कहा कि मैंने कभी जनाब रसूल खुदा से यानी अपने अम से बढ़कर कभी अपने बच्चों का नाम रखा है, तो इस बच्ची का नाम भी वही रखेंगे। जब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो और आपको इत्तला मिली तो आप बहुत खुश थे कि मेरे घर में नवासी आई है। आप आए, जनाब मुश्किल कुशा ने अपनी गोद से बच्ची नाना की गोद में दी, और जब नाना की गोद में आई हैं तो ऐसा लगता था जैसे मुस्कुरा रही हूँ। नाना ने बच्ची का चेहरा देखा और देखने के बाद कहा कि मिस्ले खुतीजा है, बिल्कुल खुतीजा जैसी लग रही है। जनाब अली ने कहा कि फातिमा और मैंने अभी इस बच्ची का नाम नहीं रखा, आप इरशाद फरमाएं कि इसका नाम हम क्या रखें। तो आपने कहा अली, कभी मैंने खुदा से अफजल हुआ हूँ, जो भी खुदा इसका नाम रखेगा, जिस तरह से हसन हुसैन का नाम रखे हैं ऐसे ही इस बच्ची का नाम भी खुदावंद करीम रखेगा। यानी लौह महफूज में मेरी बीबी का नाम है। तो जिब्राइल आए और उन्होंने कहा या रसूल खुदा, इस बच्ची का नाम आप ज़ैनब रखें, यानी बाप की जीनत। हम ये कहते हैं कि हमेशा ये कहा जाता है कि बाप की जीनत तो बेटे होते हैं, यानी बेटों की तालीम तरबियत इसलिए ज़्यादा की जाती है कि वो जीनत है, लेकिन ये ऐसी बेटी है कि जो बाप की जीनत है, बाप की शान बढ़ाने वाली है। कहा इसका नाम मैंने ज़ैनब रखा है खुदावंद करीम के हुक्म से। और फिर आपने बीबी के हाथों को चूमा, माथे को चूमा, बालों को चूमा, बार बार चूमा, बार बार चूम के, और फिर आपने अपना लुआब दहन चुसाया। मेरे मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब मुश्किल कुशा मौला अली अमीर अल मोमिनीन यासूबुद्दीन को भी अपना लुआब दहन चुसाया, और आपने हमेशा फरमाया कि ये मेरा सीना इल्म का गंजीना है, में है, कभी दूसरे की गोद में है। जब आप पैदा हुई प्यारा होता है, सभी प्यार करते हैं। बीबी ज़ैनब वो हस्ती है कि जिसको पंजतन पाक ने मिलके पाला है। रसूल खुदा हैं, मौला अली हैं, बीबी फातिमा है, जनाब हसन हुसैन है, और मेरी बीबी के झूले की डोरी कभी हसन झुलाते हैं, कभी हुसैन झुलाते हैं, कभी अली झुलाते हैं, कभी लोरी फातिमा देती हैं तो कभी लोरी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। और कितने प्यार से आपके झूले की डोरी को हिलाते हैं। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। मेरी बीबी ज़ैनब कभी एक की गोद में है, कभी दूसरे की गोद में है। जब आप पैदा हुई हैं और रसूल खुदा की गोद में है तो हसन हुसैन भी पास हैं, और ये एक इश्तियाक में है कि नाना हमें भी गोद में दें और हमें भी बहन की शक्ल दिखाएं। सब बहुत खुश हैं, लेकिन बीबी ज़ैनब रो रही हैं। बच्ची हैं, सब कहते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद रोता है, कुछ अरसे रोता है। जनाब रसूल खुदा खामोश करा रहे हैं, मुश्किल कुशा खामोश करा रहे हैं, मौला हसन और बीबी फातिमा ने कोशिश कर ली, घर में मौजूद जनाब फिजा ने कोशिश कर ली, लेकिन आप चुप ही नहीं हुई, और मौला हुसैन एक कोने में खामोश खड़े हैं। जब सबकी कोशिशें नाकाम हो गई, किसी से आप चुप नहीं हो रही, तो फिर मेरे मौला हुसैन आगे बढ़े और कहा कि मुझे दे दो, मैं चुप कराने की कोशिश करता हूँ। और जैसे बीबी मौला हुसैन की गोद में आई, मेरी बीबी को सिर्फ एक लफ्ज़ कहा मौला हुसैन ने, चुप हो जा मेरी उम्मुल मसायब, चुप हो जा मेरी शरीकतुल हुसैन, तू तो हुसैन की शरीक है, चुप हो जा।
बस ये अल्फाज कहने थे कि बीबी चुप हो गई। मेरी बीबी ज़ैनब के सीरत के वो किरदार हैं कि जिसमें बीबी के फ़ज़ाइल के साथ साथ मसाइब का जिक्र आ जाता है। आपके फ़ज़ाइल के साथ साथ आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बीबी की परवरिश हो रही है, पंजतन पाक पाल रहे हैं, बीबी परवान चढ़ रही हैं लोरियां सुन के। और जब आपने थोड़ा थोड़ा चलना सीखा तो मेरे मौला जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, देखो फातिमा इसकी चाल भी बिल्कुल खदीजा जैसी है, इसके चलने का अंदाज बताता है ये बिल्कुल खदीजा जैसी है। और फिर जैसे आप और बड़ी हुई, कभी उंगली पकड़ के अली चला रहे हैं तो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको चलना सिखा रहे हैं। मेरी बीवी 3 या 4 साल की होंगी, नाना के साथ अपने घर से नाना के घर आ रही हैं और छोटी सी हैं, चादर ओढ़ी हुई है, नाना ने उंगली पकड़ी हुई है। थोड़ी दूर चली होंगी कि किसी पत्थर से ठोकर लगी, मेरी बीबी गिरने लगी हैं तो नाना ने संभाल लिया